So good morning everyone. So today we will learn the HTML headings. So there are many previous lecture में बताया था कि H1 to H6 it is a heading tag. So there are the 6 different HTML heading tags which are defined with the H1 to H6 tag. Okay, from the highest level to lowest level. So H1 is the highest, that is the main heading, to the least level, that is the H6 least important heading. So these are the highest level to least level heading. So H1 is the largest heading tag and H6 is the smallest one. So H1 is used for the most important heading and H6 is used for the least important. Okay, so this is the H1 heading number 1. So मैंने यहाँ पे H1 to H6 heading tag आपको बताया है. So then next one is the pre tag. Okay, so pre tag is used to pre-format to the text. So the text appearing between start tag, that is pre, and end tag, that is /pre, that is closing tag. So it is displayed in monospace form. So this tag is used to position the character. Position display होता है, position the character. Then the tag is display the text in exactly same format as the character and also the line spacing format. So define the source in HTML document. So this is the pre, then आपको जो content लिखना है वो, and then /p. Okay, /pre. Okay, so this is the pre tag. So they are included in basic tag, जो हमने previous lecture में भी basic tag देखे थे. So उसके next ही हमने start किया है. So HTML heading tag देखे हमने H1 to H6, then pre tag देखा. Now Merque tag. Okay, Merque tag, which is very interesting. The HTML Merque tag is used for scrolling a piece of text and images on screen from the right to left. The text written between start tag Merque and end tag /Merque. So we'll scroll on the screen in horizontal line. Okay, so these are the example of Merque tag. So हम example देखते हैं. So it is a scroll. So okay, example देखते हैं अब हम. Merque. Okay, so मैं as it is again copy कर देती हूँ. Copy नोटपैड में हम. Okay, so यहाँ पे देखो doc type HTML, then HTML तो कंपल्सरी लिखना ही है हमें. हेड टैग दिया, टाइटल भी दिया हमने HTML Merque टैग. ओके, देन क्लोज हेड कर दिया. ओके, देन बॉडी कंटेंट. ओके, जो हमें कंटेंट लिखना है वो ये है. ओके, सो ये स्क्रोलिंग होगा. सो एंड क्लोज बॉडी, क्लोज HTML. सो Merque, दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ Merque. ओके, ये मैंने बेसिक दिया है. एंड Merque डायरेक्शन अप, द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट विल बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ओके, सो जो ये डायरेक्शन जाएगी बॉटम टू टॉप, तो मैं डायरेक्टली सेव कर देती हूँ. फाइल सेव एज कर देती हूँ एक बार. सो इट इज अ Merque टैग. सो Merque नाम ही देती हूँ, Merque.html. सो मैंने HTML से सेव कर दिया. ओके, सो डेस्कटॉप पे मैंने अगेन सेव कर दिया. तो यहाँ पे Merque, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम. देखो यहाँ पे जो मैंने अप टू बॉटम टू अप जो डायरेक्शन दिया था वो देखो एक ऐसे रन हो रहा. और जो बेसिक टैग होता है, मैंने जो बेसिक एग्जांपल दिया था तो वो ऐसा रन हो रहा है. ओके, सी द आउटपुट एंड इनपुट. सो ओके, so this is the basic example of Merque. and direction मैंने अब दी थी, तो direction will be text will be from bottom to top. So okay, this is the so this is the example of Merque tag. So next, okay, मैंने ये एग्जांपल आपको बताया Merque. सो Merque डायरेक्शन अप लिखे आप भी कर सकते हैं ये प्रोग्राम. सो डायरेक्शन टेक्स्ट विल बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएगी. एंड दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ Merque. मतलब जो बेसिक होता है वो राइट टू लेफ्ट ही स्क्रॉल होता रहता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Merque टैग. देन नेक्स्ट वन इज द HTML फॉर्मेटिंग. So HTML formatting is a process of formatting text for better look and feel. Okay, so it is a better look and feel. So HTML provides us ability to format
text without using CSS. There are the many formatting tags in HTML. So these tags are used to make text bold, italic and underline. So there are the almost 14 options available that how text appear in HTML and XHTML. So there are the two categories, physical tag and logical tag. So physical tags are used to provide the visual appearance, okay, to the text, and logical tags are used to semantic value to the text. So देखो यहाँ पे मैंने HTML फॉर्मेटिंग के एलिमेंट और डिस्क्रिप्शन दिए हैं, तो आपको ये बेसिकली यूज करने हैं HTML प्रोग्राम में. सो बी टैग, ओके, फर्स्ट वन देखो बी टैग. सो बी टैग इज अ फिजिकल टैग विच इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट. ओके, आपको जो बोल्ड करना होता है टेक्स्ट, उसके लिए आप बी टैग यूज कर सकते हो. ओके, सो स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज द लॉजिकल टैग विच टेल्स द ब्राउजर दैट टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट. आई टैग, इट इज इटैलिक. ओके, so which is used to make text italic. Then em, so it is a logical tag which is used to display content in italic also. Mark, so that is the highlight text. U, okay, जो tag है यहाँ पे U, वो underline के लिए use होता है. Then double T, this tag is used appear text in tally type. Okay, not supported in HTML5 actually. Then strike, so this tag is used to draw a strike through on this section of text. Okay, not supported in HTML5, so it is also not TT, and strike is not supported to HTML5. Then sub, that is the slightly above the normal line, and the sub, that is a slightly below the normal line. Okay, sub and sub, ये भी मैथमेटिक के लिए हमको यूज कर सकते हैं. Then del, that is delete content. Okay, आपको अगर कौन सा कंटेंट डिलीट करना है तो आप delete टैग यूज कर सकते हो. Then ins, okay, so ins, this is display the content which is added. Insert, you can say the insert. So big, so this tag is used to increase the font size by one conventional unit. Then small, so this tag is used to decrease the font size by 1 unit from the base font size. So this is the HTML formatting, the element name and उसका description मैंने दिया है. So B, strong, I, em, mark, U, double T, strike, sub, delete, ins, big, small. So ये सारे हमें HTML प्रोग्राम में यूज करने हैं, आपको यूज करने हैं और आपको प्रोग्राम भी रन करने पड़ेंगे. So आप अच्छे से वो करके रखो. देन HTML anchor tag. So anchor tag defines a hyperlink. Okay, anchor tag defines hyperlink, one page to another, that links one page to another page. It can create a hyperlink to other web page as well as files, location or any URL. Okay, आप एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए आप anchor tag यूज कर सकते हो. तो उसका सिंटैक्स जो है the href एट्रीब्यूट आपको यूज करना है. So it is most important attribute HTML tag. So which links the destination page or URL. You can say the URL. So hrefs attribute of HTML anchor tag. So the hrefs attribute you use to define the address of the file. ओके, hrefs क्या डिफाइन करता है, आपका जो फाइल का एड्रेस है वो डिफाइन करता है टू बी लिंक. ओके, जो लिंक करने के लिए वो एड्रेस हमें चाहिए होता है. सो इन अदर वर्ड्स इट पॉइंट्स आउट द डेस्टिनेशन पेज. सो सिंटैक्स ऑफ HTML एंकर टैग गिवन बिलो. ए दैट इज एंकर टैग, hrefs दैट इज द एट्रीब्यूट इक्वल टू यहाँ पे जो लिंक करना है उसका नाम रहेगा उस पेज का. सो लिंक टेक्स्ट. ओके, यहाँ पे क्लिक करके हम ये पेज ओपन कर सकते हैं. एंड क्लोज एंकर टैग. सो hrefs second.html, क्लिक फॉर सेकेंड पेज. ओके, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते थे रन होने के बाद तो ये second.html जो भी पेज होगा वो ओपन होता है. सो एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए हम ये एंकर टैग यूज कर सकते हैं. सो HTML एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक दैट लिंक्स टू वन पेज टू अनदर पेज. तो आपको सिंटैक्स भी अच्छे से करके रखना है. सो नाउ HTML लिस्ट. ओके, सो देयर आर द 3 लिस्ट: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट. ओके, ऑर्डर लिस्ट में नंबर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट को बुलेट लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं हम. सो इन द ऑर्डर HTML लिस्ट ऑल द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर मार्क्ड विथ नंबर्स. ओके, HTML के जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हम नंबर से मार्किंग कर सकते हैं. इट इज नोन एज ए नंबर लिस्ट ऑल्सो. एंड द ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विथ OL टैग. ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट. ऑर्डर लिस्ट हमें स्टार्ट करनी होती है तो हम OL टैग से स्टार्ट करते हैं. एंड जब लिस्ट के आइटम हमें इंसर्ट करने होते हैं, ओके, सो LI यूज करते हैं, LI टैग यूज करते हैं. सो डायरेक्टली हम ये रन कर देते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे OL ऑर्डर लिस्ट का जो प्रोग्राम है वो मैं लेती हूँ, अभी कॉपी किया मैंने. सो यहाँ पे कंट्रोल
ओके, देन HTML, देन हेड में कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, मुझे नहीं लिखना कुछ तो मैं नहीं लिखती हूँ। देन बॉडी टैग, OL टैग में स्टार्ट किया है लिस्ट, तो OL टैग में हमें लिस्ट देनी है। सो OL सपोज मैं यहाँ पे LI, जो भी नाम हमें, जो भी आपको अगर फ्रूट की लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे फ्रूट के नाम डाल सकते हो। अगर आपके लैंग्वेजेस की लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे लैंग्वेजेस की लिस्ट बना सकते हो। सो LI अरेज /LI बिंगो /LI लियो /LI, सो LI ओरेकल /LI। सो अगर आपको और एक ऐड करना है, सपोज मैं कर देती हूँ अभी HTML वो लिस्ट किया मैंने ऐड, सो /LI, ओके मैंने कर दिया, एंड /OL कर दिया। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट हमारी स्टॉप कर दी, एंड /body एंड /HTML मैंने सारा क्लोज कर दिया और ये सेव कर दिया ऑर्डर लिस्ट से। ओके, सेव एज, सो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट कर देती हूँ, ऑर्डर लिस्ट .html। सो सेव कर दिया, देखते हैं हम रन होता है। गूगल क्रोम, सो देखो यहाँ पे लिस्ट आई है। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हम न्यूमेरिकल में भी देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे अगर अल्फाबेटिकल चाहिए तो यहाँ पे OL टाइप = A लिख सकते हो और फाइल सेव करके आप अगेन रन कर सकते हो। देखो यहाँ पे ABCDE आया। अगर आपको नंबरिंग में चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख सकते हो, या 10 लिखा तो भी चलेगा, तो 10 से स्टार्ट होगा तो मैंने 1 ही लिखा है यहाँ पे। सो सेव, देखो अगेन 1 आएगा। ओके, सो अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे बॉडी BG कलर यूज किया है यहाँ पे, सपोज एक्वा कलर डाल देती हूँ मैं। ओके, एक्वा कलर डाल दिया। सो फाइल अगेन सेव कर दी, सेव। सो अगर आपको कोई हेडिंग देनी है तो आप दे सकते हो H1, दिस इज द ऑर्डर लिस्ट वगैरह कुछ देना चाहते हो तो /H1 कर दिया, फाइल सेव। ओके, ऑर्डर लिस्ट, सो हमारी ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे आ गई है। सो ऐसे आपको जस्ट प्रोग्राम रन करने, तो ये ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम था, अभी हमने देखा था। ओके, सो ऑर्डर लिस्ट में क्या क्या अभी अब देखते हैं इन डिटेल। सो ऑर्डर लिस्ट इज आवर नंबर लिस्ट displaying element in number format. So the HTML OL tag is used for order list. We can use order list to represent item either in numerical order format or alphabetical order format. So as depend on you. तो आप कौन से फॉर्मेट यूज कर सकते हो। मैंने अभी आपको ABCD का बताया और न्यूमरिक नंबर का बताया, तो आप ये से रोमन नंबर भी यूज कर सकते हो, स्मॉल वाले, कैपिटल वाले, स्मॉल लेटर, आपको जो भी पसंद है आप वो ऑर्डर लिस्ट में स्टार्टिंग टैग के लिए, स्टार्टिंग जो आपको लिस्ट चाहिए उसको नंबर, सीरियल नंबर देने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्डर लिस्ट देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट इन OL टैग। तो आपको ये 5 OL टैग के एट्रीब्यूट दिए उन्होंने। टाइप 1, सो दिस इज द डिफॉल्ट टाइप, देन टाइप रोमन 1, सो दिस इज द अपर केस रोमन नंबर, देन यहाँ पे टाइप स्मॉल लेटर में जो रोमन जो आई दिया है तो वो लोअर केस रोमन नंबर है, देन कैपिटल A, टाइप A तो अपर केस लेटर है, और टाइप A में लोअर केस लेटर है। जो मैंने अभी बताया उसमें से ये है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आप ऐसे भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिख सकते हो और अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हो, तो एज डिपेंड ऑन यू। सो लेट्स सी द एग्जांपल डिस्प्ले लिस्ट रोमन नंबर। सो रोमन नंबर में जो यहाँ पे लिस्ट दी उन्होंने OL टाइप 1 दैट इज रोमन नंबर दिया है, तो आपको लिस्ट कौन सी है, HTML, जावा, जावास्क्रिप्ट, SQL, और यहाँ पे OL टैग क्लोज कर दिया, दैट इज द /OL टैग हमने यूज किया है। तो हाँ, यहाँ पे जो ये होगा स्टार्टिंग जो होगा, तो ये रोमन 1 यहाँ पे आएगा HTML को, देन सेकेंड रोमन जावा को आएगा, थर्ड रोमन जावास्क्रिप्ट को आएगा। सपोज हमने जो एक एग्जांपल यहाँ पे, तो हम स्टार्टिंग टाइप जो है वो I कर देते, ओके, रोमन I। तो ये कैसे हमें दिखेगा, उनकी लिस्ट अलग है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग एग्जांपल दिया है।
और यहाँ पे भी अलग एग्जाम्पल है, आपके ऊपर है। सो एक ही फॉर्मेट में रन करना है आपको, कोई अलग अलग नहीं, प्रोग्राम अलग अलग हो सकते हैं। सो मैंने ये देखो रोमन आई, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5, ऐसे जस्ट आपको रन करना है। सो दिस इज द वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले लिस्ट इन रोमन नंबर। तो आप ऐसे अलग अलग ट्राई कर सकते हो। ओके, मैंने स्मॉल आई यूज किया तो स्मॉल आई में यहाँ पे यूज हो सकता है। सेव, देखो यहाँ पे स्मॉल आई में हुआ। ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर, ओके, ABCD का भी बताया मैंने। तो आपको जो चाहिए आप वो यूज करो, न्यूमरिक या अल्फाबेटिकल। सो आप जो मैंने 5 एट्रीब्यूट बताए उनमें से आप यूज कर सकते हो। ओके, आप सिर्फ इसमें से यूज कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट के लिए। ये देखो ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट, डिस्प्ले एलिमेंट्स इन नंबर फॉर्मेट। सो न्यूमरिक नंबर यूज कर सकते हो, कैपिटल रोमन नंबर यूज कर सकते हो, स्मॉल रोमन नंबर यूज कर सकते हो, कैपिटल अल्फाबेट यूज कर सकते हो और स्मॉल अल्फाबेट यूज कर सकते हो। सो दीज आर द 5 ऑर्डर लिस्ट। ओके, सो जो है एट्रीब्यूट है OL टैग के, वो आप यूज कर सकते हो। सो ये हमने सैम्पल एग्जांपल भी देखा। नाउ नेक्स्ट वन इज द अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट भी विच इज वेरी इजी। सो जैसे हम ऑर्डर लिस्ट में 1, जैसे 1 रोमन 1 जो भी सिक्वेंशियली करते थे, इसमें ऐसा नहीं होता अनऑर्डर लिस्ट में। सो HTML अनऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट डिस्प्ले एलिमेंट इन बुलेटेड फॉर्मेट। सो वी कैन यूज अनऑर्डर लिस्ट वेयर वी डू नॉट नीड टू डिस्प्ले आइटम इन पर्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्डर हम नहीं लेते अनऑर्डर लिस्ट में। सो द HTML UL टैग इज यूज फॉर अनऑर्डर लिस्ट। देयर आर कैन बी 4 टाइप्स बुलेटेड लिस्ट। ओके, आप 4 टाइप यूज कर सकते हो। First one is the disk. Okay, so this is the default style. In this style the item are marked with bullets. Okay, then circle, so the list item are marked with circle. Then square, so square में दिखेंगे, null, so कोई भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो disk, circle and square हम यूज करेंगे। so यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, तो जहाँ पे OL टैग यूज करते थे, यहाँ पे सिर्फ UL टैग यूज करना है हमें। ओके, और लिस्ट के लिए LI टैग एज इट इज रहना है। और जो टाइप होता है, हम सर्कल, डिस्क, स्क्वायर यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट में। वैसे ऑर्डर लिस्ट में हम क्या यूज करते हैं, अल्फाबेटिक या न्यूमेरिकल, जो सिक्वेंशियली होता है 1 2 3 ABCD वगैरह ऐसे। ओके, यहाँ पे सिर्फ अनऑर्डरली होता है, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क, इतना ही यूज करते हैं हम। सो सपोज हमारा जो प्रोग्राम था ऑर्डर लिस्ट का, वो हम कन्वर्ट करते हैं अनऑर्डर। तो अनऑर्डर लिस्ट में कैसे करते हैं ये प्रोग्राम, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, मैंने अनऑर्डर लिस्ट दिया। सो यहाँ पे OL टैग है, तो यहाँ पे UL टैग किया और टाइप मैंने दिया डिस्क देती हूँ, देन एज इट इज यहाँ पे UL। ओके, सो फाइल सेव करना है हमें। सो अनऑर्डर लिस्ट, ओके, देन सेव। मैंने .html से सेव नहीं किया अभी। सो सेव, अगेन सेव करना पड़ेगा, .html सेव। विथ गूगल फॉर्म। तो देखो यहाँ पे, देखो मैंने डिस्क दिया था। ओके, तो यहाँ पे देखो, ओके, ये जो डिस्क दिख रहे हैं, ओके, यहाँ पे, तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने UL टाइप, अनऑर्डर लिस्ट का टाइप जो है वो डिस्क लिया है, तो इसलिए डिस्क दिख रहा है। अगर मैंने सर्कल लिया यहाँ पे, ओके, सर्कल, तो मैं यहाँ पे सर्कल लेती हूँ, सर्कल एंड फाइल सेव कर दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सर्कल आ जाएंगे। देखो ये यहाँ पे सर्कल कैसे आए, डिस्क लिया था तो वैसे दिख रहा था, सर्कल लिया तो ऐसे दिख रहा है। अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ, स्क्वायर, तो वहां पे स्क्वायर आ जाएंगे। स्क्वायर लिखा, फाइल सेव। ओके, यहाँ पे देखो स्क्वायर आ गया। तो डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल, ये हम सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट में यूज करते हैं। और ऑर्डर लिस्ट में हम कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, देन ABCD, स्मॉल लेटर, अपर केस एंड 1 2 3, तो इतना हम ऑर्डर लिस्ट में यूज करते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ 3 एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कौन से, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। सो दीज आर द अनऑर्डर लिस्ट। तो हमने ऑर्डर लिस्ट देखा और अनऑर्डर लिस्ट देखा। सो आपको एग्जाम्पल भी रन करनी है इसके।
So next lecture we will see the next part. Okay, so thank you.